جو میں آپ تک شیئر کروں گا اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالت کو اس وقت تک ایک شاندار پہل ضرورت مندوں کی مدد کرتا ڈرائیوروں کا سموہ کاریہ کا ہوا آیوجن. آپ کو بتا دیں جھارکھنڈ کے جنپد کوڈرما انترگت وگڈی مدرسے میں ڈرائیوروں کے دوارا ایک کاریہ کا آیوجن کیا گیا. اس کاریہ کے مکھیہ اتھی ABL 24 نیوز کے نیشنل بیورو چیف ڈاکٹر حیدر علی اور اس سموہ کے راشٹریہ ادھیکش اظہرالدین انصاری رہے. مکھیہ اتھی نے آئے ہوئے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے بتایا کہ ڈرائیور سموہ میں لگ بھگ 700 ڈرائیور ہیں. ان لوگوں کی ایک شاندار پہل کا جذبہ سماج میں ہر اس غریب کی مدد کرنے کے لیے اٹھایا جو ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں اور جب کسی ضرورت مند کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پیسے سے اس کی مدد کرتے ہیں. اس پہل سے کافی ضرورت مندوں کی مدد کی جا چکی ہے. اسی سندربھ میں کاریہ کا کیا گیا آیوجن. اس موقع پر مدرسے کے تمام علماء اور چھیتریہ لوگ رہے موجود. اور دور و دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام السلام علیکم. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے آپ ہی وقت زیادہ کر لیتے ہیں. کام کم کرتے ہیں, وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں. آج کی اس بیٹھک میں جتنا ہم لوگ کام کیے ہیں وہ کام کا اگر محاسبہ کریں گے, اس پر آپ تجزیہ کریں گے تو گھی کی طرح جو گھی نکالتے ہیں, نچوڑتے ہیں تو گھی کم اور اس کا جو ہے ملبہ زیادہ نکل جائے. اس لیے میں آپ کے بیچ کوئی سرجن نہیں ہوں, بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں. میں جو زیادہ مشورہ دوں گا اور زیادہ آپ کے معاشرے کا, آپ کے کام کا, آپ کے چلنے پھرنے اور انداز کا ہم چیر پھاڑ دیں. اس لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر ہم چیر پھاڑ بھی کریں گے تو ہمیں اس کی سلائی بھی ضروری کرنی ہوگی, ورنہ اور بھی پیشنٹ اور بھی بیمار تھا اور ہی بیمار ہو جائے گا, گرم پڑ جائے گا, سڑ جائے گا. مجھے ادھر نہیں جانا ہے. نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے, نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو. یہی ذرے ابھرتے ہیں, یہی مٹی سنورتی ہے. روح امم کا حیات کشمکش انقلاب, جس میں ماں ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. میرا مقصد پڑھ لکھنے کے بعد سے اب تک جو ہے وہ یہ ہے کہ نام رب لے کے کچھ کیے جاؤ, نام رب لے کے کچھ کیے جاؤ, کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. نام کافی دیر سے میں بھی سن رہا آپ لوگ کی باتوں کو. 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ تک شیئر کروں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. اللہ کسی قوم کے حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے شاعر نے شعر کہا کہ ہے علم بے مثال لازوال خزانہ, ہے علم بے مثال لازوال خزانہ, نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ, نہ ہوگا علم دین تو روئے گا زمانہ.
प्यारे मोहतरम, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हम अपने नियत को दुरुस्त रखें, और दूसरी चीज ये है कि अपने सोच को बढ़ाएं। नियत दुरुस्त करने की बात मैं बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूँ। हम जो सोचते हैं उस पर हमारा गालिब गुमान छुपा होता है, यानी हमारा गुमान छुपा होता है जो हम सोचते हैं, और उस गुमान में अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। तो इसलिए हम अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी अच्छा से अच्छा सोचें, ये है सोच। और दूसरा है, हम जो करना चाहते हैं हमारा कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, और अपने सोच को जब आप बढ़ाएंगे आगे, तो आप हमसे पहले जो लोग दुनिया में गुजरे हैं, आप देखेंगे हिटलर ने अपनी सोच को लिखा है कि अगर किसी काम को शुरू करो तो 1000 डे, 1000 दिन तक लगे रहो। अगर 1000 दिन में आप कामयाब नहीं हुए तो समझ जाना कि वो आपके नसीब में नहीं था। आज से 2000 साल पहले हमारे भारत का एक राजा था, उसका नाम था अशोक सम्राट। आप पुलिस के लोगों में, यूनिफॉर्म में अशोक का वो सैंपल देखते होंगे, ये उसी अशोक सम्राट का है। वो लड़ते लड़ते एक पहाड़ के पास पहुंचा, लोगों ने उनके जो साथ थे लड़ने वाले कहने लगे साहब सामने पहाड़ है। उसने कहा बेवकूफ, ये ना देखो पहाड़ है, बल्कि ये देखो कि हमको इस पे चढ़ना, इसके ऊपर। जो मेरे साथ है वो आगे बढ़ो, जो वापस जाना जाए चला जाए, जो वापस गए मार दिए गए, जो चढ़े वो फतेह हो गया। सिकंदर ने पूरी दुनिया में हुकूमत किया था, तो वो अपने लोगों से ये नहीं पूछता था कि हमको कितने लोगों से लड़ना है, वो ये पूछता था कि हमको लड़ना कहाँ पे है। इसीलिए उसने पूरी दुनिया में हुकूमत किया। आज हमारे और आपके बीच में लोगों की सोच ये है कि जितनी लंबी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। ये गलत सोच है। आप अपने पैर को फैलाइए, अल्लाह ताला आपको चादर ढांपने के लिए देगा। आप अपने इरादे को बढ़ाइए, अपने सोच को बढ़ाइए। और जब कोई सोच को बढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। तो ये गलत मानसिकता है। देखिए, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं ये इस्लाम धर्म है, और सरकार की हदीस है जुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिन के लिए बढ़िया सोचो। आप अपने भाई के लिए सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे। और दूसरी हदीस है कि कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन मोमिन के तहत भाई और बहन है। ठीक है, तो जब हम अपने भाई के बारे में अच्छा, भाई समझेंगे मुसलमान को और उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको सलाह भी अच्छा ही देंगे। और जब हमारी नीयत पहले से खराब होगी तो मैं अच्छा सलाह किसी को नहीं दे सकता। तो सबसे पहले हमें अपने आप में देखना चाहिए। हमारे पीर मुर्शिद का कहना है कि ये पूरी दुनिया, पूरा जहान, ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में जितने जीव हैं ये अल्लाह के मखलूक हैं। आपका नजरिया, आपका व्यवहार अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा होना चाहिए। और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके नजरियात अच्छे होंगे, तो ये अल्लाह से बिजनेस है। और इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो आपका दुनिया भी समझ जाएगा और आपका आखिरत भी समझ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस बात पर अमल करें तब ना। अगर आज मैं मुबारकबाद देता हूँ, हृदय दिल से धन्यवाद करता हूँ अजहरुद्दीन साहब को, जिन्होंने एक ड्राइवर, मेरे ख्याल से वो है ना, उसी जिला में है ना, ड्राइवर होकर यहाँ मैं देखा काफी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग किसी के बारे में तारीफ कर रहे थे, कुछ बुराई कर, मैं किसी की बुराई या तारीफ करने के लिए नहीं आया। अपनी अपनी सोच है और मानसिकता है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अपने सोच को बढ़ाइए। और आप जब सोच को बढ़ाएंगे, देखिए पूरी दुनिया को सुधारने के लिए एक मुसलमान काफी है। पूरी दुनिया को सुधारने के लिए एक मुसलमान काफी है। लेकिन हाँ, रियल में अगर वो मुसलमान है तब, वरना जितने भी खुराफात आज हो रहे हैं उसमें 90% जिम्मेदार हमारे मुसलमान ही खुराफात हैं। मैं तो मीडिया से बिलोंग करता हूँ, मेरा चैनल आता है APL 24 न्यूज़ करके, मैं उसका नेशनल ब्यूरो चीफ हूँ पूरे इंडिया का। मैं देखा हूँ कि आज तक खानों में हम लोग जाते हैं तो ज्यादा केसेस अगर किसी का आते हैं मुसलमान के आते हैं। उसकी वजह क्या है कि आज मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता है। हम कहते जरूर हैं कि हम नबी की उम्मत में हैं, लेकिन हम नबी के सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे और आपके आका वो हैं जो गालियां खाकर दुआएं दिए हैं, गालियां खाकर दुआएं दिए हैं। ठीक है, इस्लाम, आज जो गंदे मानसिकता के लोग हम कहते हैं कि तुम्हारा दीन और इस्लाम जो है वो तलवार के जोर से मिला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार की जुबान अक़दस थी, आपने दीन की बुनियाद रखी, आपका दीन सारे अभियान पर गालिबा किया। वरना कसम खुदा के मेरे फारूक फरमाते हैं कि अगर तलवार के जोर से दीन फैलता ना तो पूरे रूए जमीन में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उमर के तलवार के सामने कलमा नहीं पढ़ता। तो आप सरकार के
सवाने उम्री का अगर आप मुताला करेंगे, सरकार के सीरत को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम कहाँ हैं और क्या बात कर रहे हैं। बातें बहुत लंबी लंबी लोग करते हैं, धरातल में जो बात सामने आ जाए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय बहुत हो गया है और लोगों को भूख भी लग गई होगी। अगर मैं किसी का टाइम खराब करूँगा तो उसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। इसलिए सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अल्लाह ताला अजहरुद्दीन भाई को सलामत रखे, उनके पूरे टीम को सलामत रखे। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि एक शायर ने शेर का था, आखिरी शेर ये है कि लहरों से डरकर यूं ही नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर यूं ही नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेकर दीवार पर 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, कोशिश यूं ही उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश यूं ही उसकी हर बार बेकार नहीं होती। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।